Okay, students, friends, in our last lecture we discussed that what is marketing research. Now you are clear with what is market, what is marketing, and what is marketing research. Okay, now you are very well aware about the subject or the topic, that is what marketing research. Okay, whatever we want to do, whatever we want to plan, for that we have to do a perfect homework, and after applying or completing the perfect homework, if we will go to the market, then there is a less chance of failure. Okay, if you go in a market without any kind of homework, then there is a maximum chance of failure. So to get various information, not only information, to analyze this information and find out and get the information which is related to you, and that information you are practically implement in your business for getting more and more business and to become a more success, that is what we call a marketing research. Okay, so here we discuss that objective, what are the main objective of marketing research, why we are doing this marketing research, what is the need of this marketing research, which kind of help market research give us. Okay, so here there are number of few points I have mentioned here. First one is framing of policy. Okay, whenever we enter into any business or enter into any market, then first of all we have to prepare the policy on which we are working, on which we are doing our plan. First of all, that customer, competitor, products. Okay, who are our customers, from which area they belong, who are our competitors, okay, how effective they are, and what about our product, what are the essential points of our product, what are the benefits of our product, all things must know to us. ओके, ये सब चीजें हम जानते होने चाहिए, उसके आधार पर ही हमें पॉलिसी बनानी चाहिए. कई बार देखा होता है कि कोई आप अप्लायंस खरीदने जाते हो तो उसमें 3 साल की वारंटी होती है, किसी में 5 साल की होती है, किसी में 7 साल की होती है, तो उससे ही वो भी एक पॉलिसी का क्या है, पार्ट है. उनको पता है कि इतने साल की वारंटी पर ये चीज ज्यादा बिकेगी, ये चीज ज्यादा बिकने के चांसेस है, इतना तो हम कर सकते हैं, इतने सालों के तो लिए हम सर्विस दे सकते हैं. तो उसके आधार पर कस्टमर आपका क्या होता है, आपसे जुड़ता है. तो ये पॉलिसी, आप कौन सी पॉलिसी के आधार मार्केट में आगे बढ़ रहे हो, वो आपकी पॉलिसी परफेक्ट होनी चाहिए. यू कैन चेंज योर पॉलिसी, यू कैन ऑल्टर योर पॉलिसी. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रेजेंट पॉलिसी, यू मे डू editing in that case. Second one is identifying marketing opportunities. Okay, what are the marketing opportunities in this subject or this area? Okay, how we can do more and more marketing of our product, how to increase our sales by doing marketing things. Okay, to studying customer behavior. Okay, to know that how customer easily buy this product, that you must know. Okay, तो ये सब चीजें देखकर आपको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर कैसा फील करता है, कस्टमर कैसी चीजें खरीदना प्लान करता है. क्लियर? टू एसेस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. ओके, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, आपके जो भी आप मार्केट में जाओगे आप अकेले नहीं होंगे, ऑलरेडी कहीं वेल एस्टेब्लिश कंपटीटर्स आपके होंगे, तो उसकी पहले स्ट्रेंथ चेक करो कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितने एरिया में आराम से पहुंच जाते हैं, कौन कौन से एरिया है जिसमें चीजों की जरूरत है पर वो कंपटीटर नहीं पहुंच पा रहा है, वो जो कंपटीटर सर्विस दे रहा है वो सर्विस कितनी है, उस सर्विस से वो कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, वो जो कंपटीटर फैसिलिटी दे रहा है उसमें कौन सी चीजें मोर कस्टमर को चाहिए. तो ये सब चीजों का आप एनालिसिस करोगे और वो सब चीजें आप अपने में ऐड करोगे, तो उससे आपका सेलिंग क्या होगा, ज्यादा होने के चांसेस है. पोटेंशियल बाइंग पावर ऑफ कस्टमर. Okay, suppose customer is earning 15,000 per month or 20,000 per month, and if you sell a heavy car to him or her, so he or she can afford that car. कोई कस्टमर 10-15 हजार रुपए कमा रहा है या 20 हजार कमा रहा है और आप बड़ी कार उसे बेच रहे हो, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगा? कार की लोन लेगा, उसका हफ्ता ही 10,000 आएगा, तो वो अफोर्ड कर पाएगा नहीं. तो कस्टमर की अफोर्ड कैपेसिटी क्या है, वो कितना उसका पावर है. कई बार आपने चीजें देखी होंगी, बड़े बड़े पैकेट में आती है 1-1 किलो के, और वही चीज 100 ग्राम के पैकेट में भी आती है, क्योंकि उसको पता है कि सभी कस्टमर 1 किलो नहीं खरीद सकते, उसको 100 ग्राम के पैकेट में भी बेचना पड़ सकता है. बराबर है, क्योंकि कई कस्टमर होते हैं वो 100 ग्राम ही लेते हैं, वो चीज वो पूरी की पूरी नहीं लेते हैं. तो आपको कस्टमर का पावर जानना पड़ेगा कि वो कितना खरीद सकता है, कब खरीद सकता है. आप लोगों ने देखा कि नॉर्मली जब सारे सेल आते हैं वो दिवाली पर आते हैं,
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दिवाली पर सभी जो कंपनी में काम करते हैं उन लोगों को बोनस मिलता है, उनके पास पैसा होता है। वो जानते हैं कि पूरे साल जो चीज़ नहीं खरीद पाए, जैसे वॉशिंग मशीन है या एसी है या कई ऐसी चीज़ें हैं, तो वो तब खरीदते हैं। तो ऐसे टाइम पे ही सारा सेल आता है और सारी उसमें बम्पर प्राइस और ऑफर आती है ताकि वो चीज़ें बिके। वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन कस्टमर पावर। नेक्स्ट है टू एस्टिमेट एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ द मार्केट। आप जो चीज बिक रहे हो उसका मार्केट शेयर क्या है, मार्केट में वो कितने प्रतिशत बिकती है, कितने लोग वो खरीदते हैं, कितने लोग नहीं खरीदते हैं। जैसे अनाज किराने की चीज है तो उसका परसेंटेज कितना आएगा? ज्यादा आएगा, क्योंकि सभी लोगों को अनाज और किराने की चीज तो चाहिए ही। पर क्या एसी बिकोगे तो मार्केट का शेयर क्या होगा? क्या सभी कस्टमर एसी खरीदते हैं? क्या आप अगर मान लो कि कोई चीज ऐसी बेच रहे हो, कार है या ऐसी चीज है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो क्या सब लोग खरीदेंगे? तो उसका मार्केट शेयर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ मार्केट शेयर्स? ओके, कि भाई मार्केट में वो कितनी बिक रही है, उसके आधार पर भी वो सेलिंग बहुत डिपेंड करता है। वो चीज वहां कम बिक रही है और फिर उसको आप वहां सेल्स करने जाओगे तो फिर उसका सेलिंग होने का ज्यादा चांसेस है नहीं। तो मार्केट शेयर भी देखना पड़ेगा टू एसेस फ्यूचर सेल। ओके, फ्यूचर सेल कितना होगा? अगर आप चीज बेच रहे हो तो उसको फ्यूचर क्या है उसका? आज तो चलो बिक दी, आपने मान लिया कि आपने अम्ब्रेला या रेनकोट की फैक्ट्री डाली और अम्ब्रेला और रेनकोट आप बेच रहे हो, मानसून सीजन में तो आपने बेच दिया, तो बाकी की 2 सीजन क्या करोगे? यहाँ बैठे रहोगे, बराबर है। फ्यूचर सेल्स क्या है? फ्यूचर में वो कितना सेलिंग होगा? पूरे साल भर बिकेगी चीज, लाइफ टाइम बिकेगी, 2, 3, 10, 15 सालों तक ये चीज बिकेगी, या अभी कुछ सालों के लिए इसकी जरूरत है, डिमांड है और ये बिक रही है। तो ये फ्यूचर सेल को भी आपको क्या करना पड़ेगा? फोरकास्ट करना पड़ेगा, हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, कंपटीटर को देखना पड़ेगा, वो कब तक बेचता है वो देखना पड़ेगा, कस्टमर की नीड देखनी पड़ेगी। इन सब चीजों को आप मिलाकर क्या कर सकते हो? फ्यूचर में इसका फ्यूचर प्रोडक्ट का क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ओके, आवर प्रोडक्ट इज मस्ट रीच टू द कस्टमर, नियर टू द कस्टमर। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप कोई चीज लेने गए नजदीकी दुकान में और कहा कि भाई कॉलगेट की टूथपेस्ट देना। अब कॉलगेट की वहां है तो आपको मिल जाएगी, पर कॉलगेट की नहीं है और दूसरी है, तो आप क्या करोगे? इतना ज्यादा सोचोगे नहीं, भाई दूसरी है तो दूसरी दे दो, तो उसकी चीज बिक गई, दूसरी प्रोडक्ट पेप्सोडेंट बिक गई। क्यों बिक गई? क्योंकि आप जिस दुकान में आपके घर से नजदीक है लेने गए थे, वहां कॉलगेट नहीं मिली, पेप्सोडेंट मिली, तो पेप्सोडेंट आप ले आए। क्लियर? क्यों ले आए? क्योंकि वहां इजीली अवेलेबल। ये किसका कमाल है? डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, कि आपकी चीज कस्टमर के जितने नजदीक जा सके उतना अच्छा है, क्योंकि कस्टमर अपने से नजदीक जितना होता है वही चीज खरीदने का वो क्या करता है? अप्रोच करता है, वही चीज उसको खरीदना ज्यादा पसंद रहती है। Okay, so try to sell your product as near as possible to the customer, so customer can easily buy your product. Okay, if customer want to buy another product but customer have no option to buy that product, and at that time your product is there, then customer definitely like or buy your product definitely. Okay, so this is nothing but distributing method. In distributing method we already know in marketing there is a wholesaler, dealer and retailer and etc. You can also reduce your cost in distribution method if you direct sell your product. Okay, so these are the various objectives we can include in our marketing research. We can also add more points like market size, geographical area and customer need and customer liking and disliking and product liking and disliking. Sometimes your product is good but customer don't like the shape of your product or the color of your product or the wrapper which is on the product, so that's why he dislike your product. Okay, so all these various things we can add more and more into the market research. Okay, thank you.